Good morning, class 11. So, relations and functions, chapter number 2. Today we will see graphs of some real functions. Real function मतलब डोमेन भी R या R का सबसेट, रेंज भी या तो R या R का सबसेट. First, the identity function f of x equal to x. This is an identity function. तो इसका ग्राफ बनाने के लिए ऑर्डर ट्रेस ले लो. The values of x is the domain and f of x is considered as y equal to f of x. Now x minus 2, f of x is minus 2, minus 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Got it? Now अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं x, y, origin, x dash, y dash. x minus 2, y minus 2, x minus 1, y minus 1, x0, y0, x1, y1, x2, y2. This is the graph. This is the graph of y equal to x. अब क्या खास बात है इसकी? This is a line which passes through the origin and equally inclined with the coordinate axis. 45 डिग्री का एंगल x axis के साथ, 45 डिग्री का एंगल y axis के साथ. ठीक है? Next, constant function f of x equal to k, where k is any real value. So constant function. Let's take an example. f of x equal to हम ले लेते हैं 2. k is any constant. Let us say it is 2. तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ऑर्डर ट्रेस बनाने पड़ेंगे. So f of x को हम मान लेते हैं y. If I take x equal to minus 2, f of x is always 2. minus 1 पे भी 2, 0 पे भी 2, 1 पे भी 2, 2 पे भी 2. Got it? अगर ग्राफ प्लॉट करें इसका, x इक्वल टू माइनस 2 पे y की वैल्यू 2, माइनस 1 पे भी 2, 0 पे भी 2, 1 पे भी 2, 2 पे भी 2. नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, f of x always remains 2. So ग्राफ कैसा है? ग्राफ इज ए लाइन which is parallel to x axis. अगर मान लो यहाँ 2 की जगह -2 होता तो ग्राफ नीचे बन जाता. इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन which is parallel to x axis. मॉडुलस फंक्शन f of x equal to mod x. ऑर्डर ट्रेस बना लेते हैं. x minus 2, mod of minus 2 is plus 2. x equal to minus 1, minus 1 का मॉडुलस plus 1, 0, 0, 1, 1, 2 पे 2. Let's see what is the graph. At x equal to minus 2, y is 2. At x equal to minus 1, it is 1. At x equal to 0, it is 0. ये ग्राफ आया 1 पे 1, 2 पे 2, इस तरह चला गया ग्राफ. राइट? सो y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इट्स रेंज इज r प्लस, और यू कैन से 0 to infinity. The range of this function is r plus 0 to infinity. All the non-negative real numbers is the range of this particular function. ठीक है? और फंक्शन डिस्कस करते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स डिस्कस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. पहले इसको समझाओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है. इट इज रिटन एज f of x equal to x in square brackets. Now मान लो x की वैल्यू फ्रैक्शनल है. इट लाइज बिटवीन एनी टू इंटीजर्स. से फॉर इंस्टेंस यूजुअली आप लोग क्या करते हो? सपोज x is equal to 2.1 and I ask you to convert it to write x in terms of nearest integer. तो हम इसको क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे. अगर मान लो ये होता है x equal to 2.9, तो 2.1 lies between 2 and 3. It is closer to 2. That's why if I have to convert it in terms of integer, I will write it as 2.
इफ इट इज 2.9 इट इज क्लोजर टू 3, तो उसको इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू कन्वर्ट, दिस फंक्शन सेज if x is fractional it is to be converted into an integer but the value of integer should not exceed the actual value of x। तो 2.1 को इंटीग्रल वैल्यू में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 2, 2.9 को इंटीग्रल वैल्यू में चेंज करेंगे तो आप 3 नहीं लिखेंगे बिकॉज 3 exceeds 2.9। so the greatest integer function says according to the definition of the function, the formation of the function, x should be converted into the nearest integer but the value of integer should not exceed actual value of x। hope you got it। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। -3 पे -3, -2.9 इसका क्लोजेस्ट इंटीजर -3 बिकॉज -3 इज लेस देन -2.9, -2.1 पर भी -3 बिकॉज -3 इज लेस देन -2.1, -2 पे -2, -1.9 पर भी -2, -1.1 पर भी -2, -1 पे -1, -0.9, this lies between 0 and -1, so it is -1। why? because -1 is less than -0.9, -0.1 पर भी -1 हो जाएगा। अब 0 पे 0, 0.1 पे भी 0, 0.9 पे भी 0, 1 पे 1, 1.1 पे भी 1, 1.9 पे भी 1, 2 आते ही 2, 2.1 पे भी 2, 2.9 पे भी 2। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अगर इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना, मैं यहाँ साइड में प्लॉट कर देता हूँ। Okay, now x equal to -3, y is -3। अब -2.9 पे भी -3, -2.001 तक भी -3। जैसे ही x इक्वल टू -2 हुआ, ग्राफ यहाँ ब्रेक हो गया और यहाँ पे आ गया, -2 पे -2, -1.9 पे -2, -1.001 तक भी -2। जैसे x इक्वल टू -1 हुआ, ग्राफ यहाँ ब्रेक हो गया और यहाँ आ गया। अब ये चलता रहेगा। जैसे x इक्वल टू 0 हुआ, ग्राफ इधर से ब्रेक हो गया, यहाँ आ गया। 0.1 पे भी 0, 0.999 तक भी 0। जैसे x इक्वल टू 1 आया, ग्राफ इधर ब्रेक हो गया, यहाँ पे आ गया। अब ये चलता रहेगा। 1.1 पर भी 1, 1.99 तक भी 1। जैसे x की वैल्यू 2 आएगी, ग्राफ यहाँ ब्रेक हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस तरह चलता रहेगा। तो हम क्या देखते हैं, एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, व्हेनेवर x इज एन इंटीजर, ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। सो दिस इंडिकेट्स दिस पॉइंट डजंट लाई हियर एंड दिस डार्क पॉइंट इंडिकेट्स इट लाइज हियर। ओके, सो इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक बात और याद रखना, बहुत सी बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन के नाम से भी पढ़ोगे इसको। इट्स बिकॉज द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म इज अ स्टेप लाइक स्ट्रक्चर, स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, सो दे कॉल इट एज स्टेप फंक्शन ऑल्सो। इट मे हैपन कि आप किसी रेफरेंस बुक में देखें और आपके सामने स्टेप फंक्शन आए तो कंफ्यूज मत हो जाना, दैट इज ही इज टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कमिंग अप टू द नेक्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x या a टू द पावर x, a इज ए कांस्टेंट। आपने जूनियर क्लासेस में 6, 7, 8, 9 इन क्लासेस में एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स पढ़ा होगा। सो दिस इज जस्ट एन एक्सपोनेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, f of x इक्वल टू 2 पावर x। a की जगह मैंने 2 ले लिया बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ग्राफ प्लॉट करते हैं।
x equal to -3, 2 to the power -3 becomes 1 upon 2 cube, that is 1 upon 8. X equal to -2, so that is 1 upon 2 square, 1 upon 4. This becomes 1 upon 2. X equal to 0, 2 power 0. Any non-zero real number to the power 0 is 0. Sorry, 1. Now x is 1, 2 power 1, 2. 2 power 2, 4. 2 power 3, 8. ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. x इक्वल टू -3 पे 1/8, फिर 1/4, फिर 1/2, चलते चलते यहाँ तक आ गया. 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 8. तो ग्राफ कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ जाना है, राइट? So what do we observe? We observe that this graph never intersects the x-axis. x-axis को intersect करना मतलब y 0 होना. y 0 होना मतलब y की वैल्यू 0 कब होगी? जब f of x 0 हो जाएगा. तो x की कौन सी वैल्यू होगी वो जहां पे 0 हो जाएगा? तभी 0 नहीं बनेगा. फॉर नो रियल वैल्यू ऑफ x, नो मैटर. चलो x को हम मान लेते हैं -1000. सो 1/2 power 1000. अगेन दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. इवन इफ x is million, this is 1/2 into 1/2 to the power 1 million, that is 10 power 6. Got it? तो it is positive. The magnitude decreases, magnitude कम हो जाएगा, लेकिन ये ग्राफ कभी x axis को इंटरसेक्ट नहीं करेगा. For any real value of x, this graph will never intersect the x axis. Got it? So these are certain graphs. आपके NCERT में ग्राफ दे रखे हैं, go through them. और कोई डाउट होता है पूछें.